Okay, and one more thing, you will get the recording in your app. आपके ऐप में आपकी जो रिकॉर्डिंग है, that recording will be, you will get after 1 day. Suppose आज की जो रिकॉर्डिंग है, you will get a tomorrow. ठीक है, क्योंकि there is a need Okay. of some time for converting and then downloading and then uploading. ठीक है. Now, so now this topic, let's see the importance. ना importance as I was saying कि 3 to 4 question आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको. What I will discuss today, I will discuss the basics idea that related to the quadratic equation, along with the some you can say the question, conceptual question, and there are lots of the previous year question of 2 examination. One is IIT mains exam and second is MCA, and we will see together then whatever the scenario we are making, whether it is a helpful in the real time examinations question or not. Okay, so each topic I will teach you the 2 classes. The first class will be basic and the understandable, and the second class will be the practice class only. Okay, so today is your first class, the quadratic equation. So we will discuss then what we can you can say make the scenario and how we can build our basics idea. Okay, now the when I come the quadratic equation की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में आ जाएगा कि भाई what is it, what the quadratic equation. A polynomial, suppose I will write that f of x is equal to a x square plus bx plus c. This is a polynomial of degree 2. This is a polynomial of Yes, degree sir. 2 na. And what is the meaning of degree? Yes. The highest power of the variable. The highest power of the variable in the equation or polynomial is called as a degree. So degree का concept clear है. Suppose I am saying कि that 2x cube plus 2x plus 3, yeah, 2x square plus 3x is equal to 0. It is a cubic equation. But what is the degree of this equation? 3. 3. Degree of this equation is the 3. So the quadratic equation is the equation having this ax square plus bx plus c is equal to 0, where the degree of the equation will be 2. Quadratic means 2. So we can see a equation of ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Please understand the coefficient of highest power का जो coefficient है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, and a b c are belonging to the real number. A, B, C are belonging to a real number. Why? Because it can be imaginary also, but हमारे जो syllabus में है वो हमारा real number से related है. A, B, C हमारे real number Yes, sir. होने चाहिए. And A, B, C what they are called? They are called as a sorry, bx plus c is equal to 0. So A, B, C are the coefficient of the quadratic equation. The coefficient of the quadratic equation. So this ax square plus bx plus c is equal to 0. It is nothing. It is a general quadratic equation understanding. So हमें जब भी कभी हमारे माइंड में बात आएगी यार ये हमें quadratic equation समझनी है, तो quadratic equation के हमारे माइंड में आएगा ax square plus bx plus c. What is the second understanding we required? The second we required the general formation of the quadratic equation. General formation. What is it? The general formation of the quadratic equation is that x square minus sum of root into x plus product of root. Suppose I have assumed that alpha and beta are the roots of equation. अब एक बात आएगी माइंड में यार ये सर ये रूट्स क्या है? I will tell you what are the roots. So alpha and beta are the roots. Then the equation will be x square. Sum of root. Sum of root means alpha plus beta of x plus product of root. Product of root means alpha beta is equal to 0. So this is the equation that we need to understand. If alpha and beta are the roots of equation, then the general formation is this. This is a highly recommended one that you need to understand. Okay. Yes, sir. Okay. Now that x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta is equal to 0. Now we will see the relation. See, ax square
plus bx plus c is equal to 0 is my general equation of the quadratic equation. X square plus, sorry, minus alpha plus beta of x plus alpha beta equal to 0 is my general formation. We need to comparison these two. हमें अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. I have what I did, I make the coefficient 1 here because यहाँ पे coefficient मेरा 1 था. So this is my first equation and this is second. So what is the conclusion from here? If I will compare, then alpha plus beta will be minus b upon a and alpha beta will be c upon a. These things also we required to understand. हमें थोड़ी सी ये बात याद रखनी है that alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a. I think you have understood now. What we have understood what is the quadratic equation, what is the general formation it, and what is the relation that sum of root will be minus b upon a and the product of root will be c upon a, and the equation will be ax square plus bx plus c. हो सकता है ये चीज आपको पहले से पता हो, because this is not, I'm not telling anything new here, this is already written in the book. Okay, now but it is required, it is required to understand. I'm just going to revising some concept, then I will tell you my concept that I am using in quadratic equation. Now the finding the roots. सबसे पहले बात आती है सर रूट्स क्या है? The value of x, the value of variable. Suppose I put it, the quadratic equation is x square minus of 2x plus 1 is equal to 0. The value of x which satisfy this equation, that is roots. X का वो value जो इस equation को satisfy करे. Suppose I put it 1 here. So this is 1 square minus of 2 into 1 plus 1, that becomes 0. So 0 is equal to 0. It means roots is something that satisfy the equation. Roots is something that satisfy the equation. That how we can calculate it? There is two ways to find out the roots. There are two methods or two ways to find out the roots. The first is factorization method, and the second one is the discriminant method. When the comes in the mind the factorization method and discriminant method, so what is again a scenario, or you can say again a doubt, what is discriminant? What is discriminant? So when we have ax square plus bx plus c is equal to 0 is my quadratic equation. So the discriminant will be here b square minus 4ac. The value of discriminant will be b square minus 4ac. Okay, now let's see one by one that how we can find out the roots. So we have, first of all, we have the factorization way. The factorization way, how we can calculate? We have one equation that x square minus 5x plus c is equal 6 is equal to 0. What we will do? I hope आपको ये बात पता होगी that x square minus of 5x plus 6 is equal to 0. What we were doing in the class of 11th or you can say 8th से लेके हमने पढ़ा है quadratic equation, तो हम इसका फैक्टर करते हैं. हम देखते हैं यार ये 2 into 3 बना और ये 6 into 1 बना. Yes, but if it is plus here, यहाँ पर अगर plus है तो डेफिनेटली मुझे दो नंबर इनके फैक्टराइज या आप कह लो इनको कह लो इनके फैक्टर यूज करके मुझे मिडिल वाला नंबर बनाना होता था. यार प्लस करके 6 और 1 तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 2 और 3 से ही बनेगा. तो हम लिख देते थे कि यार एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और हम यहाँ पर x कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ 3, यहाँ पर x कॉमन लिया 3 कॉमन लिया तो I will get this. So I will get a 2 factor x minus 2, that x minus 3 is equal to 0. These are the two factor of this quadratic equation. But I can say that x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2, and x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. Okay. Sorry. So यहाँ से हम this method we were using. What we will do today, we will do the same thing but little bit in a different manner. Okay, let's see what we can do. Make a factor 2 into 3. We have did the factor. Now we have the idea कि यार अगर यहाँ पे plus होगा, we have to use a factor in a way that हमें plus करके आना चाहिए. तो यहाँ क्या बनाना है हमें?
-5 we need to create. So this will be -2 and -3. इन दोनों, इस नंबर को तो हम यूज नहीं कर सकते, 2 और 3 को हम यूज करेंगे -2 -3 से. एंड व्हाट विल बी द रूट्स? रूट्स विल बी change the sign 2 and 3. Whatever the sign here, we will change the sign and we will get the roots. Now tell me, have you understand this process? Yes, sir. Okay. This coefficient was 1. ये वाला coefficient क्या है मेरा यहाँ पर 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर directly 2 and 3 लिख दिया. What happen when the coefficient is not 1? Coefficient is something. So this is 3 into 1, this is 2 into 1, and this is 7. So what is this? Is plus here ना? अगर ये प्लस है इसका मतलब है ये फैक्टर्स यूज करके मुझे 7 बनाना है. तो हाउ कैन आई क्रिएट? 2 into 3 से तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 6 into 1 से. तो यहाँ पे हम करेंगे -6 -1. इज इट ओके? Yes, sir. And what we will do? What is the value of x? The x value will be 6 and 1. आपको लगेगा कि यार जो x की वैल्यू है वो 6,1 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है that is not 1. So what we will do? The next step will be we will divide with the coefficient. So x roots will be 3,1/2. 3,1/2. Got it? Okay, sir. Why this required? Because ये चीजें हमें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन में we will assume the quadratic equation, we will assume the number. So if you are not aware that how we can find out the roots quickly, या how we can make the equation quickly, then we cannot apply our method in a very you can say shortest way. नहीं, वही मेथड ना बड़ा लेंदी हो जाएगा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सॉल्व करने लगे या रूट्स निकालने के लिए सॉल्व करने लगे. तो let's see some you can say practice while calculating the roots. We have x square plus 11x plus 30 is equal to 0. You need to tell me what is the root of the equation. Please try it. Sir, -6 -5. -6 -5. Okay. So what we have did? We have did 6 into 5, and I have remember कि यार ये plus है तो this will be a +6 +5. So what I will do? If I change the sign, that x value will be -6 and -5. That's okay. Now let's do the next one. If you want to try, you can try mentally also. There is no need of pen and paper for these type of question. But ऐसे questions exam में नहीं आएंगे. Sir, 4 and 3. 4 and 3. So this is 4 into 3. So this is what my -3 -4. And this, what is the answer? That x will be 4 and 3. Done. This is only for the making the understanding. Please let me repeat. This type of question will not come in the exam. Ki somebody is saying कि यार x square minus 14x plus 48 is equal to 0 का roots बता दो. No, nobody is going to ask this question. This is a very you can say MCA में ऐसा कोई question नहीं आएगा. Now tell me what is the answer? सर इसका तो बता देना 4 and 3. मेरा शायद लैग चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर नहीं हुआ. नहीं, x स्क्वायर माइनस 14 x प्लस 48. अच्छा हाँ, अब हो गया. अब What is the answer? Sir, my 8 and 6. 8 and 6. So this is what my 8 into 6. So this is what my -8 -6. So we will get the answer x is equal to 8 and 6. Now the next one. Now अभी तक क्या था? देखो इन सब में प्लस हो रहा था. 6 and 5. अच्छा ये माइनस है. Yes sir, okay. This is the minus here. So we have to make this number by the subtracting. So this is 4 into 3. So we have to make -1. So -1 will be -4 plus 3. Then only we will get the -1.
because this is So, minus 1. sir, answer will be 6 and minus 5. No, 6 and minus 5. Why? Because this is 12, na? So 6 and minus 5. Oh, sorry. 4 and minus. Yeah, 4 3. and minus 3. The answer will be 4 and minus 3. Yes, definitely correct. Next. So 5 and 3. 5 and 3, absolutely correct. 5 into 3. So this is what my minus 5, minus 3. So I will get this value as a 5 and 3. Now let's see what are the answer here. Now what we will do? Minus 3 by 2. Yes. सर थोड़ा लैग हो रहा है यहाँ पे तो that's why नहीं, I'm getting your voice. No issue. हाँ सर अब ठीक है वो बीच में मेरा डाटा थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना वो स्क्रीन पे क्वेश्चंस लेट अपीयर हो रहे थे मेरे को अच्छा तो इसलिए सर इसका -4 and -3 by 2 I think. Yes, I think so. So this is 4 into 3 and this Yes. is 2 into 1. So what I need to make a 11. So this 4 and 2, 8, 8 and 3, that become 11. So this will be plus 8 plus 3. So the answer would be -8 minus 3, but this 2 is here, so I have to divide with the 2. So the final answer would be -4 and -3 by 2. Yes, correct. Next question. Sir, it will be -7 by 2 and -2. Okay, so this will be what my 7 into 2 and this will be 2 into 1. So this 4 and 7 will be 11. So this is -7 -4. So answer would be that -7 by 2 and -2. You will get the answer. Next. Sir, -2 and -2 by 3. Now we have to make this 8. So this will be a 2 into 2 and this will be a 3 into 1. So this 3 and 2 becomes 6. 6 Yes. or plus 2, that is 8. So this will be a +6 plus 2. So this will be that -6 minus 2 divided by 3 divided by 3. So answer would be -2 and -2 by 3. Got it? Now Yes, the sir. next and the last one, I think so. 5x square minus 18x plus 9 is equal to 0. So -3 and -3 by 5. Okay, so this is 3 into 3. This is 5 into 1. So it becomes 5 and 3 will be 15. 15 and 3, 18. So this will be a minus of 15 minus of 3, that become plus of 15 plus of 3 divided by 5 divided by 5. So answer would be 3 and 3 by 5. Okay, so I hope we have understand sufficient questions we have done while solving this quadratic equation का भाई roots क्या होगा, root solve करने का हमने sufficient question easily कर लिया. Now let's see Yes, the another question we have. ठीक है, try कर लेते हैं. 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0. Now try this please. ये कौन नीचे वाला क्वेश्चन है जो 4x? हाँ, 4x square minus 8x plus 3. So what we will do? 2 into 2. This is 3 Yes, into sir, 1. So this 3 into 3 1. and 2 will become 6. 6 and 2, that will be 8. So -6 and -2. And what we will do, that x will be
6 and 2 divided by 4 divided by 4. So answer would be 3 by 2, and this is 1 by 2. So we have 3 by 2 and 1 by 2. Okay, Yes, sir. I think I'm saying same correct now, 3 by 2 and 1 by 2, because 6 and 2, yes. Okay, now, Yes, sir. so we have got this. So we have practiced sufficient question while solving the roots now. So I think we are comfortable while solving the roots with the factorization method. What we will do when the Yes, sir. factorization is not done, or we are not able to do the factorize, or factors से हमारे number अगर question नहीं calculate होता है, then what we will do? So now we have another method to find out the roots, that called as a discriminant method. What the discriminant method is, we have the formula for finding, suppose we have ax square plus bx plus c is equal to 0 as a quadratic equation. So we have the x value will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Sometimes if I will replace the discriminant, as I told you, the discriminant value is my b square minus 4ac. So I can say also that minus b plus minus under root of b divided by 2a. This is an formula. This can be this by this formula we can calculate any questions, but we will only apply when the factorization वे से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम तभी ये चीज अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब यहाँ से एक बात हमें ये समझनी है कि भाई यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आएंगे. द फर्स्ट रूट विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, and the second root will be minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a. You are saying मतलब आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा. इट मीन्स सपोज इफ आई विल से that 2 plus root 3 is my one root, 2 plus root 3 is my one root, so definitely there will be a second root will be 2 minus root 3. 2 minus root 3. Definitely there will be. इसका मतलब है जो conjugate pair है, conjugate root will be in pair only. If one root is alpha plus under root of beta, then definitely the second root will be alpha minus under root of beta. And the second thing from here, from this concept is, suppose the one root is alpha plus iota beta. Iota beta means when we got a complex root. Okay, I will tell you where we will get the complex root. If one root is alpha plus iota beta, then definitely the second root will be alpha minus iota beta. They are also in pair. If somebody is saying here 2 plus root 3 of iota is my one root, then second root definitely will be this one. Why? Because अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है. Yes. Now we have one question to solve. Find the roots of 27 of x square minus of 10x plus 1 is equal to 0. First of all, we will see whether this can be done with factorization or not. See, 27 is 9 into 3, or we can say 3 into 3 into 3. So we do not have any number pair, so we will make a 10. हम 10 बना नहीं सकते. जब हम यहाँ 10 बना नहीं सकते, then what we will do? We will apply a formula minus of b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. What it will give? It will give the 10 plus minus under root of 100, because b square is 100, minus of 4 into 27 and divided by 2 into 27. What we will get here, the 10 plus minus under root of this is 100 minus 27 का डबल अगर करेंगे तो 54 आने वाला है. Yes ना? और क्योंकि मुझे 4 times करना है, तो you can multiply 27 into 4 also, but what I will do like that कि 24 का डबल 54 हो गया, and sorry 27 का डबल 54 है और 54 का डबल 108 है. So I will get here that 108, and this is 2 into 27 because 2a. What I will solve here, the 10 plus minus under root of minus of 8 divided by 2 into 27. What are the answer here? The 10 plus minus 2 under root 2 of iota divided by 2 into 27. Why? Because the that
आयोटा विल कम व्हेन वी हैव द रूट में कोई भी अगर माइनस वैल्यू आती है या -1 की जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है। तो अगर मेरा -8 आया था तो 8 का अगर मैंने रूट लिया तो 2√2 आया, और -1 का जो रूट आया वो मेरा आयोटा आया। सो दिस 2 से दिस कैन बी कैंसिल विद 5 टाइम्स, दिस कैन बी कैंसिल विद 2 कैंसिल। नाउ द फाइनल आंसर वी हैव 5 प्लस माइनस √2 of iota divided by 27. So you can understand from here, one root will be 5 plus √2 of iota by 27, and the second root will be 5 minus √2 iota by 27. So they are in pair. They are in pair. Got it? Now tell me, have you got this idea or not? The discriminant method. Yes, sir. Okay, done. Now we have to understand the nature of root. This is highly recommended one and required to understand here to apply the logic method. Nature of roots. Nature of roots means sometimes the roots are real, sometimes imaginary, sometimes you can say rational, irrational. So we will see what is the condition where the roots are equal, unequal, या discriminant. ये सब चीजें हम देखने वाले हैं. So we have this chart where we can say the roots are distinct. कब होगा, कब क्या करना है, we have to see. Now let me tell you this. When the equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, I know the discriminant is my b square minus 4ac. The discriminant is my b square minus 4ac. The nature of root is depending on the discriminant of the quadratic equation. So if d is greater than equal to 0, the roots are real. The roots are real. When the Real. d is less than of 0, then roots are imaginary. The roots are imaginary. तो सिंपली अगर कभी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आप उसका अगर नेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि यार डी की वैल्यू निकाल लूं, अगर वो मेरी लेस देन 0 आएगी तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई या 0 आ गई या ग्रेटर देन 0 आ गई तो मेरे पास रूट्स होंगे रियल. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई अगर डी बराबर 0 हो जाए, क्योंकि यहां से हम फर्दर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इफ डी इज इक्वल टू 0. अगर डी 0 होगा तो रूट्स होंगे इक्वल. जो रूट्स है, रूट्स की वैल्यू होगी इक्वल. मान लो कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी दे दिया जाता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट, तो आपको समझ जाना चाहिए इसका जो डी की वैल्यू है ना वो 0 होगी. अब डी ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो. Why perfect square? Because minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. अगर ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो आप मुझे बताओ अंडर रूट हट जाएगा ना, तो रूट्स होंगे आपके डिस्टिंक्ट बट रेशनल. कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रेशनल. लेकिन अगर यही वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट बना रहेगा. जो रूट होगा वो बना रहेगा, मतलब वो रूट हटेगा नहीं. जब रूट हटेगा नहीं तो वो कंडीशन आएगी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स अलग अलग तो होंगे लेकिन होंगे इररेशनल. कैसे होंगे? इररेशनल. सो द पॉइंट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब d की वैल्यू लेस देन ऑफ 0 है तो रूट्स मेरे इमेजिनरी रहेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स मेरे रियल रहेंगे, और d इक्वल टू 0 है तो मेरे पास इक्वल है. और जब ग्रेटर देन 0 में दो चीजें आती हैं कि सर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो सर इररेशनल होंगे. बात क्लियर है? यस सर. नाउ वी विल सी द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी आइडिया. ठीक है, हम इन सबका भी ग्राफ भी देखने वाले हैं कि ग्राफ कैसा होगा. जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी कि भाई रूट्स है, रूट्स डिपेंड करेंगे आपके पास डी वैल्यू पर. मैंने आपसे कहा कि भाई डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे पता चला कि रूट्स आर रियल. रूट्स आर रियल. और मैंने जब डी लेस देन इक्वल टू 0 बोला तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जो रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी. तो एक बात और समझेंगे यहाँ पर, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई आपसे अगर इसका ग्राफ पूछे तो ग्राफ जो होगा उसका पैराबोलिक होता है. ग्राफ जो इसका होता है पैराबोलिक. पैराबोलिक इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड द पैराबोलिक, है ना. जब इमेजिनरी रूट्स होगा तो जो ग्राफ बनेगा ना वो हवा में बनेगा. हवा में बनने का मतलब है वो कोई भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. ऐसा बन सकता है,
ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, किसी भी तरीके का बन सकता है, लेकिन इट विल नॉट टच और क्रॉस, इट विल नॉट टच और क्रॉस एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही क्रॉस करेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो रियल मिलेगी ही नहीं, हमारे पास क्या मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन में x रूट्स आर रियल, इसका मतलब है यहाँ पे वो टच भी कर सकता है और वो क्रॉस भी कर सकता है। कहने का मतलब है टच भी करेगा, क्रॉस भी करेगा, व्हाई, बिकॉज द रूट्स आर रियल। अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई कर दूं, मैंने लिखा था d ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, and we have the condition d greater than 0 but perfect square, and we have d equal to 0. ठीक है, when we have d equal to 0 we are saying the roots are equal, roots are equal, हम कह रहे हैं कि भाई जो रूट्स हैं वो हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इट विल ओनली टच द एक्स एक्सिस, यहीं पर दोनों वैल्यू होंगी x की, इट विल ओनली टच द एक्स एक्सिस, बट यहाँ पर डिस्टिंक्ट होंगे दोनों की दोनों वैल्यू, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी। जब डिस्टिंक्ट हैं so what will happen, they will cross the x-axis at the 2 point. This is x1, this is x2, this is x1, this is x2. So the point here, please remember this one, when the d is equal to 0 then the roots are equal, so it will only touch the x-axis, whether in this manner, ये ऐसे भी टच कर सकता है, प्लीज ऐसे भी टच कर सकता है, ऐसे भी टच कर सकता है, ओनली टचिंग हियर, ये ऐसे भी कर सकता है। वो तो बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 है तो जो इक्वेशन है, जो आपका ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका क्या करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करेगा। और जब डी मेरा लेस देन ऑफ 0 है तो वो आपका किसी भी एक्सिस को, मतलब किसी भी एक्सिस का मेरा कहने का मतलब है दैट एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। अब आप बोलो सर बाई को करेगा, सर बाई को भी नहीं करेगा, वो सिर्फ हवा में लटका होगा। ठीक है, बात सर क्लियर है? इसमें जो d ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उसमें और d विद परफेक्ट, d इज ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें ग्राफ में क्या डिफरेंस बनेगा? इसमें इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। Why? ओके सर। Because it is not an because we have some value ना। देखो मान लो मेरे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 आया और एक 2 प्लस रूट 3 आया, बात मानते हो? यस सर। तो अब भाई 2 माइनस 1.732 and 2 plus 1.732, so we have some value ना, we have some value, यस यस so सर। we will get a 2 point here. ठीक है, ओके सर। now we have done with you can say this the nature of root. Now we need to observe this quadratic equation little bit a more deeper understanding. अभी तक हमने जो करा वो हमने कैलकुलेशन करी, बाकी चीजें करी। अब आपको मैं कुछ quadratic equation दे रहा हूँ, find out the roots together these quadratic equation, then I will tell you the my method to solve the quadratic equation. Please find out the root of each and every question and let me know what are the answer. What are the roots here? So first one, sir, 2 and 3. 2 and 3. What are the roots here? Sir, minus 2 and 3. What are the roots here? Here, sir, 5 and 1. 5 Sorry. and 1, no. No, sir, 5 and 1 नहीं है ये। ये होगा minus 3 and plus 2. Yes. Minus 3 plus 2. And here
-2 and +3. this -2 + 3. Okay. Now अभी तो हमने रूट निकाला, अभी हम इस रूट इसको हम ना थोड़े डिफरेंट तरीके से समझेंगे. What I want to tell you, this is what my product of root now. This is only the product of Yes, root. sir. Why? Because we have the equation x square minus sum of root and plus Yes, sir. product of root is equal to 0. Now if the Yes, product sir. of root is positive, if the product of root is positive, there will be only two scenario. Either both the roots are positive और both the roots are negative. दो ही बातें हो सकती हैं यार. अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है तो या तो दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे या Yes, दोनों sir. के दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव आएंगे. Hmm. नाउ अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है और उसके एडजेसेंट साइन अगर माइनस है, देन द रूट्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव. Yes, sir. और अगर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी साइन नहीं बदले, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो डेफिनेटली द रूट्स आर नेगेटिव नेगेटिव. Yes, sir. If we have product of roots minus the product of root minus, it means what? दो रूट हैं और दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस है तो डेफिनेटली एक रूट प्लस होगा और एक माइनस होगा. Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर माइनस में है इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली एक प्लस और एक माइनस होगा. नो मैटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, माइनस की कौन सी वैल्यू है प्लस की कौन सी वैल्यू है, जाने दो. फिलहाल ये बात याद रखो Yes. कि भाई जब प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस है इसका मतलब है वी हैव ओनली टू नंबर बिकॉज वी हैव द टू रूट्स. सो इफ वी हैव टू नंबर वी हैव द टू रूट्स, इट मींस one root is positive and one root is negative. Now we have to understand again this, please understand this one. If the product of root is positive, there is two scenario only. One is if both the roots are positive positive or both the roots are negative negative. So how we will differentiate? अगर पूरी इक्वेशन का किसी का भी अगर साइन चेंज नहीं हो रहा टर्म का, इसका मतलब है कि उसके साइन कैसे होंगे? नेगेटिव नेगेटिव होंगे और इसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे. बात क्लियर है? Yes, sir. Is it okay? Yes, Now I am asking some question. You do not need to tell me the root of the equation. You need to tell me the type of root, whether it is a positive positive, it will give negative negative, or it will give plus minus, or it will give a minus plus, whatever it is. So I am writing the equation. Please do not worry कि इसका आंसर क्या आने वाला है. ठीक है? अगर मान लो किसी का आंसर 1 minus under root 3 आ गया और ये 1 plus under root 3 आ गया, इसका मतलब ये समझ लो सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. होगा कि नहीं? आप बताओ भाई. इसकी वैल्यू तो 1.732 होती है ना, तो डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है. सो यू डू नॉट नीड टू वरीड कि आपको क्या कैलकुलेट करना है. आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई प्लस माइनस रूट होंगे या माइनस प्लस रूट होंगे. नाउ व्हाट वी हैव, सपोज मैंने आपसे पूछा दैट x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइन. प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है मतलब बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव. Suppose I said x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Product of root is positive, but sign is not changing here, so the roots are negative negative. Negative. X square minus of x plus 12, sorry, minus of 12 is equal to 0. Product of root is negative, so definitely plus minus, just forget everything. Okay? Yes, sir. Now, Yes. what are the uses of this? देखो मैं बहुत देर से आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में कराऊंगा. वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन द एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस. ओके, Okay, sir. shall we try? So I think you have understood now how we will get 1 plus plus 1 minus minus everything we get it, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Now please understand in whole, let me tell you, please understand wherever whatever the chapter it is, whether it is a permutation combination, it is a quadratic equation, it is a logarithm, it is a matrix determinant, whatever it is, or whether it is a geometry, whatever it is. For me there is a 4 step of solving the question. There is 4 step of solving the question. Okay, now Okay, sir. one is read question carefully. Suppose you did not read the question carefully, you will not extract the information. आप extract नहीं कर पाओगे information को. So read question carefully. The second step is
understand options given in the question, because here we are not in the race कि यार मुझे पेपर भरना है, whether it, मतलब हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हमें पेज भरना है जैसे हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम लिखने में करते हैं। जैसे कि अब अच्छा आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन में क्या होता है 36 पेज की, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो 36 पेज की एक कॉपी मिलती थी, तो उसमें रेस में Yes, लगे sir. होते थे कौन कितनी ज्यादा कॉपी भरेगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये होता था कि भाई कॉपी पे ध्यान नहीं देते थे, हम ध्यान देते थे उसके मेथोडोलॉजी पे और उसके फाइनल आंसर पे। लेकिन Yes, sir. यहाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट, वी ओनली रिक्वायर्ड टू चूज द राइट ऑप्शन व्हाटएवर द मेथड Yes, इट sir. इज, व्हाटएवर द मेथड इट इज, Yes. है ना, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट वरीड कि यार आपने क्या सॉल्व करा क्या नहीं सॉल्व करा। सो अंडरस्टैंड ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। एंड द सेकंड वन, make the scenario. Scenario means what? You have extract some information, you have read the option, and you have understand कि what is the answers required, what is the question में क्या required है, that एक फिल्म बननी चाहिए या कह लो एक स्टेप्स बनने चाहिए आपके माइंड में कि मैं क्या करूंगा। And the fourth Yes, one sir. is the mark the answer. I generally love to follow this method and I am sure that this will be working. But please understand, we have suppose 100 question to solve. Yes, If sir. I am able to solve first day 70 question on the basis of this 4-step solving and I am not able to solve 30% of the question on the basis of this method, so do not worried. Why? Because it is a startup. Today, if you are able to Yes, solve 70% of the question in the same method, if you are not able to solve this 30, so if you will continue this method, this will become one day that will become the 90% you can easily solve with the understanding based, and the 10% you need to solve. You need to solve Yes, sir. only of 10%. लेकिन अगर आप ये steps follow नहीं करेंगे, suppose you didn't follow it, या हमने देखा कि यार हम किसी नहीं यार मैथोडोलॉजी में करते हैं ये हो जाता है या वो हो जाता है कुछ भी, ठीक है, तो फिर ये 90% आप अचीव नहीं कर पाओगे, ये 90% आप अचीव नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरा मतलब वी हैव टू कमिटेड कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लो मेरा आंसर इससे मेथड से नहीं आया, मान लो मेरा आंसर नहीं आया और मैंने उसमें 4 मिनट स्पेंड करा या 3 मिनट स्पेंड करा, आपको एक बात ध्यान रखना, उसे मैं अपनी मार्क करके रखूंगा, उसे मैं स्टार मार्क करके रखूंगा अपने माइंड में। एंड वेन एवर आई विल रिपीटिंग माई माइंड कि यार मैं कैसे अपने थॉट्स को मैं रिपीट करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ एक डिफरेंट लेवल पे, मतलब एक छोटा आंसर उसका कैसे हो सकता है। एक बात समझ लो सर, मैथमेटिक्स इज अ समथिंग कि वो इजीली हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में होता है, ये आपको कहा, आपने कहावत भी सुनी होगी, लेकिन हो सकता है कभी कभार यार कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ना हो जल्दी से, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसका शॉर्ट मेथड नहीं होगा या उसकी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, होगी, लेकिन हमें नहीं Yes, sir. पता, वो हम इनकलकेट Yes, sir. करेंगे धीरे धीरे, जब हम डेवलप करेंगे तो हम वो इनकलकेट करेंगे अपने अंदर, ठीक है। Okay, sir. And now the second thing is, suppose we want to solve the 100 question and we are applying some method and we are getting the answer in 30 seconds of time or 1 minute of time, we are getting the answer. But सपोज हमने 100 क्वेश्चन की सीट करी और 95 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो गए और 5 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर रीजन से मेरे रॉन्ग हो गए। पर्टिकुलर रीजन मतलब मान लो मैंने मेथड लगाया बट एक तो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया और मैंने कुछ और ऑप्शन चूज कर दिया जल्दी में, मैंने अपना शॉर्ट मेथड लगाया लेकिन मैं क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी नहीं समझ पाया। सो इज इट अ पॉइंट ऑफ वरीड? आई थिंक 95 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 5 क्वेश्चन अगर No, आपने sir. नहीं कर पाए, सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कि नहीं यार मुझे नहीं ये 5 क्वेश्चन होने चाहिए थे तो मैं ये मेथड बदल दूंगा, नो, we have to try to correct these 5 also, लेकिन ये तो देखो 95 क्वेश्चन you have did correctly। तो पॉइंट यहाँ पर ये Yes, था sir. कि अगर एक आध क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, नॉट वरीड, फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ, बाकी तो हो गए लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ। लेकिन we will not change our methodology is the same, read question carefully, understand the options, make the scenario and mark the answer, okay। Now Sir, let's try the first make question. the Yes, hello. yes,
सर मेक द सिनेरियो में क्या मतलब इसके मेक द हमें सिनेरियो इसके मींस हमें क्या कनेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा था व्हेन आई विल टेक द डेमो, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करा था, द टू नंबर HM is 4 and there is some Yes, sir. information given to us and they were asking the two number। इसका मतलब क्या है, हमें यार डायरेक्टली दिख रहा था यार 2 नंबर का HM मेरे पास 4 दे रखा है, तो यार वो 2 नंबर चूज कर लो, टेंशन खत्म करो, बीच वाली रामायण छोड़ दो, Yes, sir. है ना। सो दिस इज Okay. आई एम विलिंग टू टेल यू, ठीक है। नाउ वी हैव द Okay, फर्स्ट sir. क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट and see whatever the question I have put it here, please understand all are the IIT mains or MCA, there is nothing मतलब the question that I have created, मैंने कोई question create नहीं करा। Okay, sir. if alpha beta be the roots of equation, then whose roots are 1 upon alpha square and 1 upon beta square। पहले मैं आपको इसका ना बेसिक मेथड बताऊंगा जो हम जनरली सॉल्व करते हैं या हम अपने 11th 12th वाली क्लास में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद फिर हम करेंगे। क्या करते थे सर, यहां से हम निकाल लेते थे ना अल्फा प्लस बीटा आ गया Yes. +2, अल्फा Yes, बीटा sir. कितना आ गया 3, और हम Yes, sir. ये मेरे पास पहला रूट है, मान लो A है और ये मेरे पास B है, तो इक्वेशन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x² सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे और सम ऑफ रूट निकालते थे। सम ऑफ रूट कैसे करेंगे, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखना पड़ता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम करते थे यार हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की पता है, अल्फा बीटा की पता है, तो हमें यहाँ से सम ऑफ रूट आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना था, तो हमारे पास आ जाता 1 अपॉन Yes, sir. अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो हम ये काम करते थे, लेकिन हम यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दिस। व्हाट वी विल डू, वी हैव द नेचर ऑफ रूट। आप मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं, x² माइनस 2x प्लस 3 से अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं। यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मैं कह रहा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी ना। क्यों, सम ऑफ रूट इज पॉजिटिव, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव, साइन इज चेंजिंग, बोथ द पॉजिटिव Changing, yes. now Both tell me positive, yes, sir. 1 upon alpha square is positive or not, Yes, sir. this is positive or not, Yes, sir. now choose the option which having the both the roots positive, this is negative negative, this is positive C. positive, this is negative negative, this is positive negative, so the answer is option C, nothing else. Okay. Nothing else. And I have the proof that 3 or 4 2 question directly came in examination and they are applying this method. Matlab applying means we can apply this method on the questions. Yes, If sir. you are not got it, please let me repeat it. हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, let me repeat this. The thing is x square minus के 2x plus 3 is equal to 0. We have both the roots positive. And 1 Yes, sir. upon alpha square is also positive. And 1 is upon Yes, beta square is also positive. आप पूछ रहे थे ना सर सिनेरियो का मतलब क्या है, सिनेरियो का मतलब यह है कि हम अपने माइंड में बनाएंगे यार हमें ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसके दोनों रूट पॉजिटिव हो, जिसके दोनों रूट पॉजिटिव हो। इसके दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव और इसके एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू मार्क इट एंड मूव Yes, फॉरवर्ड। sir. Do not worry that what is, or this method is also applicable in none of these wale scenario. I have told you कि 0.01% case where the none of these is the given answer हो सकता है, वहां आपको देखो रिस्क ले लो। 100 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है ना और 99 अगर आपके 30 सेकंड के टाइम में हो रहे हैं तो मैं कहता हूँ रिस्क ले लो,
एक क्वेश्चन का वैसे भी देखो 100 में से 100 कर नहीं पाओगे, आप कोई भी मेथड लगा लो, टाइम स्पेंड कर लो, नहीं कर पाओगे ना, इसलिए। नाउ लेट टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो यहाँ पे तो मैंने किसी से कह दिया कि भाई कर ले, तेरी मर्जी है, उसके हिसाब से रूट्स वूट्स निकाल ले, कर ले, नंबर गिवन है। व्हाट वी विल डू हियर, if alpha beta are the roots of equation of lx square plus mx plus n is equal to 0, then the equation whose roots are alpha q beta and alpha beta q, okay? Yes, sir. Try for a 30 second and then I will tell you. Sir, B answer, I think. Yes, B. B. Okay, let me Sir, solve but this question. Okay, okay. bolo. Okay. Dekho, all the signs are same. Yes, sir. It means the roots are negative. Yes, sir. Negative. What I need to calculate? Yes, alpha q beta. Alpha q negative, beta is negative, multiply, we got a positive sign. Got it? Yes, sir. Alpha beta q. Alpha is negative, multiply beta q is negative, because negative का cube negative होता है, is equal to positive. It means we have to choose an option having both the roots positive. Both the roots D positive. answer then. So what is the answer? Then D will be the This is D. minus plus, this is minus minus, this is plus minus or minus plus, and this is plus plus. So answer would be option D. And now what you can try, आप क्या कर सकते हो, you can try on, you can say on Google में आप सर्च करके देख सकते हो. If you want the solution, then you can, I will, आपको एक सीट मिलेगी, उस सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. देखिए, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता था जो ज्यादातर एग्जाम में यूज होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले वो रखा. वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कराने का मेरा कोई मन नहीं था कि यार मैं आपको कह दूं कि अगर कोई एक रूट 5 है या 3 है तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. तो ऐसे क्वेश्चन कराने का मेरा कोई मतलब नहीं था, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निम सेट ना. आपको ये ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बाकी चीजें पता ही है. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन दैट केम इन 2018 निम सेट. चेक करोगे आपको मिलेगा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2018 NIMSET. The quadratic equation whose roots are sin square 18 plus cos square 36. Sir, tell me what is the answer here? Sir, C. Why C? ध्यान Sir, से देखो. sin square both roots are positive, so we have to look for the equation in which the roots will be positive. So C minus. Okay, sir. A will be the answer. Yes. मतलब आपको समझ में आ गया था, लेकिन आप प्लस माइनस कर रहे हुए भूल रहे थे, है ना? सर वो मैं भूल गया कि मतलब किस मतलब याद वो मैंने कि प्लस कहाँ मतलब क्या क्या होगा, मैं एकदम याद नहीं आया मुझे. You have understood that sin square 18 will be positive and cos square 18 is also positive. So cos square 36 is also positive. Making the scenario means I need to choose the options having the both the roots positive. So it is positive. It is negative, positive. So only option A is the correct answer, nothing else. अब एक बात यहाँ पे मेरी समझना ध्यान से, मतलब देखो लॉजिकली, मतलब ये जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ तो लॉजिकली यहाँ पे एक बात समझने की है. आप बताओ क्या आपको sin 18 के वैल्यू याद है? नो सर. क्या आपको cos 36 की वैल्यू याद है? मैंने वैसे याद कर रखी थी बट अभी एक्चुअली याद नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ. इज देयर एनी मेथड टू रिमेंबर इजीली? इजीली का मतलब है जैसे sin 90 की वैल्यू याद है, 30 की वैल्यू याद होती है, 120 की याद होती है, 150 की वैल्यू याद होती है, 240 की याद होती है. तो क्या इजीली हम sin 18 की वैल्यू याद रखते हैं कॉमनली? नो सर, नहीं रखते सर. नहीं रखते. और यार उसने भी देखो चालाकी से स्क्वायर क्यों दिया?
अदरवाइज make यू it आर नॉट positive. एबल टू फाइंड आउट। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 90% लोगों ने पता नहीं क्या क्या करा होगा, 10% जो कर रहे हैं जिनका अच्छा चल रहा है, 10 या 20% हो सकते हैं जिन्होंने मार्क कर लिया होगा। नहीं तो बच्चा सोच रहा होगा सर साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, और किसी किसी को याद भी होगी, बच्चों को तो याद भी होती है। मैं अगर हाँ अपनी सर, बात शायद बोलूं, अंडर रूट मैं अगर अपनी अंडर बात रूट बोलूं 10 माइनस ऑनेस्टली, 5/10. हाँ ऑनेस्टली, अगर मैं ऐसे ही उठ के चला जाऊं एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे नहीं पता, अगर मुझे ये मेथड नहीं यस पता सर. होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे साइन सर 18 की वैल्यू निकालनी मैं पड़ेगी, भी उसी तरीके से करता है, इफ आई है ना। डोंट नो अबाउट तो दी. मैं भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आई एम टेलिंग द मेथड। सो दिस इज द थिंग दैट वी रिक्वायर टू इनकलकेट, कि भाई क्वेश्चन का, यस. ये जो क्वेश्चन दिया है एग्जामिनेशन ने, तो वो ये सोच के नहीं दिया कि वो बैठे और सॉल्व करे, उसको याद हो, उसको बोले यार कुछ उसने ऑब्जर्वेशन तो करी हो। उसने पूरा क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर. पढ़ लिया, उसने कुछ ऑब्जर्व भी नहीं करा, इसका मतलब क्या है, उसने रट्टा मारा है ना। यस नाउ सर. यस टेल मी सर. व्हाट इज द आंसर हियर। दिस इज अ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, IIT. सर डी. Again you are saying the wrong answer. ओ सॉरी, मैंने वो नीचे. थोड़ा सा यस सर. टाइम क्विक, मतलब थोड़ा सा केयरफुली। both the roots are positive, this is also positive, this यस is सर. also positive, so this is only the option we have, option A. सर एक बार आप मेरे को वो वाला स्लाइड दिखा सकते हो जिसमें आपने वो हाँ लिखा हाँ था कि हाँ इक्वेशन हाँ के आगे, because हाँ, I want to write it down. no issue, no issue, this one, Yes sir. do it. Done. Sir, just a second. Done sir. Okay, so I think you have now much more clear ना, plus plus minus Yes plus sir. हमें क्या करना Yes sir. है now. This is the question that we will do later on. Let's do this one. Okay, sir. Alpha and alpha square is the value of this one, then the equation whose roots are this. Sir, B. B. Okay, Yes sir. let me solve this. See, x square plus x plus 1 is equal to 0. That means that alpha is negative and alpha square is also negative. कोई दिक्कत? But sir, alpha square, how can it be negative? It can be imaginary ना. Suppose 3 of iota का alpha है, तो अल्फा स्क्वायर कैन बी, सॉरी अल्फा स्क्वायर मतलब रूट है ना, एक अल्फा है, मान लो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है तो कैन बी पॉसिबल। Yes sir, got it. ठीक है, Yeah, got it. सो यू विल नॉट Yes sir. थिंक कि यार अल्फा ना, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव कैसे हुआ, बिकॉज अल्फा कैन बी इमेजिनरी, बिकॉज रूट्स इमेजिनरी हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, यहीं yes पर sir, अगर yes. कभी ए स्क्वायर लिखा होता या बी स्क्वायर या सी स्क्वायर की बात करें, दैट नेवर बी नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज दे आर द रियल नंबर। लेकिन ई में Real numbers, इमेजिनरी yes sir. नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। हो So सकता है, yes sir. alpha is negative, beta is negative. I got it from here. Alpha 31, it means minus 1 raised to power 31 will be negative. Yes sir. And alpha raised to power 62. 62. Please do not understand the 62 is the even number. This is alpha square raised to power 31. Are you getting my point? Yes sir.
alpha square is negative, then 31, then this is also negative. बट अगर हम इसे सर 62 के उसमें लेके चले तो, क्योंकि नेगेटिव तो अल्फा स्क्वायर भी नेगेटिव ही है। आप 62 ले लो। आप अगर अल्फा स्क्वायर को मान लो 9 ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख दो, तो ये माइनस ऑफ 9 होगा या नहीं होगा? यस सर। अगर मैं अल्फा रेस टू पावर 62 कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो कैन आई डू दैट अल्फा स्क्वायर रेस टू पावर 31? यस सर। कैन आई से दिस माइनस ऑफ 9 रेस टू पावर 31? इट इज इक्वल टू नेगेटिव और नॉट? बिकॉज आपको ये नंबर, ये इक्वेशन देख के ही समझ जाना चाहिए कि अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर विल बी व्हाट माय इमेजिनरी वन। ये चीज आपके माइंड में, ये तो कॉमन इक्वेशन है ना, कॉमन इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे समझ में आ गया यार, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ना नेगेटिव नेगेटिव। तो सर इसके तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं होगा। इसका नेगेटिव नेगेटिव है, कैन बी पॉसिबल। दिस इज आल्सो नेगेटिव, कैन बी पॉसिबल। यार या तो फंस गए। अब एक बात बताओ, आप कर क्या रहे हो? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए पूछ रहे हैं ना वो, तभी तो कर पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट into x plus product of root. Then how it is possible the degree becomes 60? No, degree cannot be 60. Yes, this is the answer now only, because हमारी इक्वेशन तो यही बनेगी ना, x स्क्वायर अल्फा की पावर 31 प्लस अल्फा की पावर 62 of x plus अल्फा की पावर 31 into अल्फा की पावर 62 is equal to 0. This is only. So the equation having degree is only 2 na. It means we can easily eliminate. We can easily eliminate this. This is not y, this is plus plus. This is not y, this is minus plus. This is minus minus. This is minus minus. No problem. यार डिग्री तो मेरी 2 होगी, so डिग्री 2 वाला आंसर डन, खत्म काम। This is also a question of I think 2016 MCA question. 16 और 17 में से कोई एक है, याद नहीं है मुझे। And now we have to solve it. लेकिन ये सेम क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है ना, सेम ये दिस क्वेश्चन इज आल्सो IIT मेंस 2007 क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर आप IIT मेंस के प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी उसको समझने के लिए। ये क्वेश्चन है सर, एक्स स्क्वायर लिखा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। हाउ वी कैन सॉल्व? Tell me what is the answer here. Sir, B. D या B? Sir, B. B. Sir, we have alpha and beta positive from here. Beta is also positive from here, so this is also positive, this is also positive. So we have to see a equation having the roots are positive positive. So this is negative positive, this is positive positive, this is negative positive, this is negative positive. So only one option we have, option 2 is correct one. But अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो, आई नीड टू टेल यू, मतलब मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। So why? Because it is having cos phi here, it is having cos phi here. लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन हो गया हमसे, लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता, सपोज इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सपोज दे आर सेइंग कि सपोज देयर इज अ प्लस हियर, मैंने अगर इसके ऑप्शन चेंज कर दिए, सपोज आई हैव डिड दैट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x cos of n phi minus 1 is equal to 0. Suppose x square minus k 2x cos of n phi plus 1 is equal to 0, and I have changed that x square minus of 2x sin phi plus 1 is equal to 0. Then x square plus of 2x sin n phi minus 1 is equal to 0. इसका नेगेटिव प्लस, इसका नेगेटिव प्लस, इसका प्लस प्लस और इसका प्लस प्लस। अगर ऐसा कुछ हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। अब ऐसी सारी अंडरस्टैंडिंग
मतलब देखो अब ऐसा हो जाता, अब ऐसे तो सर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सारे क्वेश्चंस में मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, लेकिन हमें तो अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन हम अब जैसे अभी ये किसी के साथ आप शेयर कर लो, वो कह दे कि यार यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता, तब तू क्या करता भाई? यार होता तो इसका मतलब क्या है, फिर वो एग्जाम में नहीं आता, वो फिर आता है किसके एग्जाम में, वो आता है आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब है आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना, फिर वो ऑप्शन वाले एग्जाम में नहीं आता। ठीक है? यस सर, यस सर। Now okay, now we have to solve this question. एक बार ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, ट्राई इट, एंड दिस इज आल्सो द 2002 मेंस क्वेश्चन। सर इसका भी सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को? आपको इस क्वेश्चन को मतलब वही मार्क करना है कि हाउ यू विल व्हाट इज द आंसर हियर। सर अभी ये क्वेश्चन जो ये cos अल्फा वाला? नहीं ये वाला। अभी आपके स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है? मेरे वाले स्क्रीन पे cos अल्फा वाला है। नहीं यार, एक सेकेंड। इफ अल्फा, आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आती है ना? हाँ सर वॉइस तो क्लियर होती है, स्क्रीन मेरे शायद से लैग हो रहा है, पता नहीं आज। अच्छा एक काम करता हूँ मैं ना, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मुझे भी उससे फर्क पड़े। इफ अल्फा ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बीटा, अभी दिख रहा है? नहीं सर। एक सेकेंड, अभी? सर वो मेरी तरफ से दिक्कत है सर, आपको से सही है? नहीं हाँ, वो भी फिर भी ना दिखना तो चाहिए ना, दिक्कत तो कहीं भी हो। अभी दिख गया क्वेश्चन? इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हैविंग अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा इज इट्स रूट। yes, is it visible? हाँ सर, ये इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा वाला हाँ क्वेश्चन है। हाँ, अभी हमें हाँ एक ये वाला सर क्वेश्चन दिख गया। ट्राई करना है। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टेक अ 1 minute एंड ट्राई इट। डन? सर ए। yes, you got my point. Okay, now let me check also na, let me check. Alpha square minus 5 alpha plus 3 is equal to 0 and beta square minus of 5 beta plus 3 is equal to 0. So I have alpha is positive and beta is positive. Now alpha upon beta, yeah, beta upon alpha, we have positive. It means we want to select a equation having both the roots positive. So it is having positive, it is having negative positive, it is having negative positive, and it is also positive. अब किसी बच्चे ने मेरी ना आधी बात समझी होगी ना, तो बोलेगा सर आपका मेथड यहाँ पे काम ही नहीं करता। दूसरी बात क्या है यार, ये दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक बात और, यहाँ पे देखो अगर मैं इंस का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, so the product of root is 1, but here the product of root is 3, so this is not impossible. This is the product of root is 1, so option A is my correct answer. Got it? आप समझ रहे हो? आपको जब आपने देखा यार अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट वी हैव गॉट इट टू ऑप्शंस मैचिंग विद द साइन,
then what we need to do, we have to look कि हम कर क्या रहे थे। ये मेरे पास दो रूट है और इनका अगर मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट आ रहा है 3 और यहाँ का प्रोडक्ट आ रहा है 1, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है C अपॉन ए, C अपॉन ए मतलब 1। इसका मतलब है द ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर, दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस Yes. एक्सप्लेनेशन, मैंने ना बीच में स्किप हो गया सारा। कोई दिक्कत नहीं, लेट मी रिपीट दिस। सॉरी कोई दिक्कत नहीं। अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बीटा square minus of 5 beta plus 3 is equal to 0. The roots are positive. It means that alpha is positive and beta is also positive. So alpha upon beta and beta upon alpha, it is positive. Got it? Now Yes, we have to mark, we have to choose an option having both the roots positive. So it is having positive, it is having negative positive, it is having negative positive, and it is having positive. So I have the contradiction here. A can be answer, D can be answer. How I will choose that A is not the answer or D is not the answer? I have to look little bit, थोड़ा सा इसमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन मैच कर गए और अब तक एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। अगर दोनों ऑप्शन मैच करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका निकालना इजी क्या है। क्या इसका प्रोडक्ट सम ऑफ रूट निकालना इजी है? आप बताओ, क्या इसका सम ऑफ रूट निकालना इजी है? नहीं, इसका निकालना इजी था प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैंने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला तो इस इक्वेशन का, तो वो आ गया 1। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है लेकिन इस इक्वेशन का आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है, 1 तो है नहीं, इसका मतलब है दिस इज नॉट द आंसर, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट? यस सर। तो अब एक और बात समझ में आ जाती है कि यार अगर कभी कभी मान लो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैक टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो इजीली कैलकुलेटेड कंडीशन होगी उस कंडीशन को हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट और मार्क करेंगे, मूव फॉरवर्ड। ठीक है? Yes sir. Yes sir. This is the first type of question the generally ask in examination, that where you can apply this absolutely working method, and I love to teach this and I apply in mains also, that IIT mains also. ठीक है? Now what is the second understanding of the type of question? ठीक है? ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, आई विल शेयर द शीट। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, देखो क्वेश्चन देखो आपका कैसा दिया है, पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में दिया है और पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में कैलकुलेट करा रहा है। क्वेश्चन वेरिएबल में दिया है, क्वेश्चन वेरिएबल में दिया होगा, मींस देयर आर सर्टेन कंडीशन गिवन। सो लेट मी टेल यू द मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेकेंड टाइप, और यू कैन से call as a second most important questions while solving now. Let me tell in this one also. And this is the methodology. Suppose जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, this is the methodology that I applied everywhere in every chapter. Similarly, in each and every sector एक्सेप्ट कैलकुलस, मैं कैलकुलस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जब मैं कभी ऑल सेक्टर या ऑल सब्जेक्ट या ऑल उसकी बात करूं टॉपिक्स की, तो आप कैलकुलस को मत इंक्लूड करना बस। तो जब भी कभी क्वेश्चंस आर गिवन इन वेरिएबल्स, कंडीशंस आर गिवन इन आल्सो सम वेरिएबल्स, एंड ऑप्शंस आर आल्सो गिवन इन वेरिएबल, what we can assume? We can assume any value of variables and satisfy options easily. इसका मतलब ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, ऑप्शंस भी वेरिएबल के फॉर्म में हो या ऑप्शन किसी और फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन वेरिएबल हो, पूरा क्वेश्चन, तो हम उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू ना अज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम उसकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है? एक बार मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं।
अदरवाइज उसकी जो मैथोडोलॉजी है वो आप बुक से देखेंगे तो आपको इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, छोटा सा है, रैंडमली क्वेश्चन पुट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मुझे स्किप करना पड़ रहा है, बिकॉज अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर Okay, क्वेश्चन sir. क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, मतलब भाई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर है। अब वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 8 9 हो सकता है, 11 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4 सी की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4 सी की वैल्यू। और ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन BHU के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये निमसेट में तो नहीं आया, लेकिन BHU के एग्जाम में आया है। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालना है। मैंने कहा कि यार अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा कॉन्जुगेटिव नंबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा को 2 मान लेता हूँ और सर बीटा को 3 मान लेता हूँ। मान सकता हूँ या नहीं, पहले तो ये बताओ, क्योंकि भाई कॉन्जुगेटिव नंबर है। Yes, sir. अगर मैंने अल्फा और बीटा को 2 और 3 मान लिया तो मेरे माइंड में एक है कि इसकी डायरेक्ट इक्वेशन होती है ये बी स्क्वायर माइनस 4, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस सी, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा 5 हो गया और अल्फा बीटा 6 हो गया। अच्छा, Yes, मैंने ये sir. रूट्स ऐसे क्यों माने, इसलिए माने कि यार पहले से मेरे माइंड में इक्वेशन थी, ये मुझे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अब कोई बंदा ये बोले या कोई ये बोले कि सर मैं मानूंगा 24 एंड 25, भाई मानेगा ना तो मान ले, आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, आंसर तो आ Yes, जाएगा sir. लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो Yes, मैंने sir. यहाँ पर इसको माना, मुझे यहाँ से समझ में आया कि भाई बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6 है। गॉट इट। ये जो बी Yes, sir. की वैल्यू है वो 5 है, सी की वैल्यू 6 है। अब मुझे क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर माइनस 4C, तो 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 6, तो सर 25 माइनस 24, सर आंसर आ गया 1। करेक्ट आंसर इज माई 1। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं सर आपने 2 3 लिया था, मैं सर 2 3 नहीं लूंगा, मैं लूंगा सर 6 एंड 5। क्या लूंगा, 6 एंड 5। तो सर इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस ऑफ 30 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत सर? No, sir. नहीं। अब सर बी की वैल्यू, सर बी की वैल्यू 11 हो गई और सी की वैल्यू 30 हो गई, बी की वैल्यू 11 हो गई और सी की वैल्यू 30 हो गई। अब सर क्या निकालना तो है, मतलब वही है कि टाइम लेगा अगर हम ज्यादा बी बड़ी स्क्वायर वैल्यूज लें माइनस 4C चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 30, 11 स्क्वायर होता है 121 माइनस ऑफ 120, आंसर आ गया 1। तब भी आंसर 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपका क्वेश्चन देखो वेरिएबल में गिवन था, वेरिएबल में मुझसे वैल्यू पूछी थी, मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर ली, क्या कर ली, वैल्यू अज्यूम कर ली, और इस वैल्यू अजम्पशन के बाद में मैंने इसकी वैल्यू का कैलकुलेशन करा, तो मेरा आंसर आ गया 1। अब आप कोई भी वैल्यू के मान लो, कुछ भी मान लो आप, कोई भी रूट मान लो, लेकिन कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, आंसर आपका 1 ही आएगा 100%। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब सर चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये IIT मेंस में 2007 में आया था, लेकिन निमसेट में 2018 में आया था। आप देखोगे तो निमसेट का पेपर 2018 का डाउनलोड करना, ये वाला क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो सर। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 and alpha upon beta 2 alpha be the roots of equation of x square minus के qx plus r is equal to 0, then the value of r, मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, r की वैल्यू पूछ रहा है। आप सोच के देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो या लेस देन ऑफ 1 मिनट कर पाओगे? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ही दे रखा है। मेथड, हाँ, कन्वेंशनल मेथड से नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। यस सर। है ना। अब करना क्या है,
सर अल्फा बीटा मान लो सटाक से 2 3, क्यों? क्योंकि सर हैबिचुअल है। जैसे आपने देखा सीरीज में हम 1 2 3 मान लेते थे, हम हैबिचुअल थे। तो सर इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सर अल्फा अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 एंड 2 इंटू 3, तो सर अगला बना मेरा 1 एंड 6। तो जब रूट 1 एंड 6 है तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सर मैं क्या करूंगा, सर यहाँ से p की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू आ गई 6, q की वैल्यू आ गई 7 और r की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछ रहा है r की वैल्यू क्या है। सर देखो ये ऑप्शन जो है वो p और q पर डिपेंडेंट है, p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 7 है। p और q पर डिपेंडेंट है। सर ये p और q की वैल्यू आप ऑप्शन में रखो, जिस भी ऑप्शन का आंसर 6 आ जाए, क्योंकि r की वैल्यू मेरी 6 आ रही है, जिस भी ऑप्शन का आंसर 6 आ जाए वही आंसर है। रख के देखो सर, p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ये 2/9 इंटू -2 इंटू 9। सर ये आ रहा है मेरा -4, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 2p माइनस क्यू मतलब 14 माइनस 5 9 होगा। इसका मतलब मैं इससे ये वाली वैल्यू हर हमेशा मैं काट दूंगा, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा 2 इंटू 7 माइनस 5। सो दस ये 4 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 इंटू 7 माइनस 10, सर ये -6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब सर 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, 4 गिवन है, दिस इज ओनली द आंसर। गॉट इट? कोई दिक्कत? yes, sir. तो No, ये sir. मेथड, प्लीज दिस मेथड इज हाईली रिक्वायर्ड, बोथ द मेथड्स अलोंग विद योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं जब आपको कल क्लास लूंगा, कल क्लास में हम कन्वेंशनल वाले क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कन्वेंशनल Yes, sir. क्वेश्चन क्या आएंगे, वी विल डिस्कस द लेटर ऑन इन द प्रैक्टिस क्लास। But this method and the previous one is highly required to solve the quadratic equation of understanding. ठीक है? Yes, sir. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और मेथोडोलॉजी समझ में Yes, आ sir. गई कि हम अज्यूम करेंगे एंड ट्राई टू गेट इट सम वेरिएबल्स की वैल्यू एंड वी विल सेटिस्फाई। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Now you can try this question. This is a 2012 mains question. If alpha beta be the roots of this equation, that alpha plus k and beta plus k are the roots of this equation, then the value of this. Now एक काम कर ले, x square minus 5x plus c is equal to 0, 2 and 3, कोई दिक्कत? मुझे यहाँ से समझ में आ गया भाई, a की वैल्यू b है, f की वैल्यू मेरा -5 और c की वैल्यू 6 है, क्योंकि वो रूट कह नहीं रहा पॉजिटिव नेगेटिव है। अब सर मैंने करा 2 प्लस, मान लो मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूँ 1 and 3 plus 1, that k वैल्यू इज माय 1। मैंने k की वैल्यू को 1 ले लिया। सर इक्वेशन बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 and 4 हो गया 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सर p की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, q की वैल्यू सर 7 आ गई, और जब r की वैल्यू है वो मेरे पास 12 आ गई। कोई दिक्कत? No, sir. अब सर हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4pr। बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस ऑफ 4 into 6, 4 into 6 will be 1, and this is 7 square minus 4 into 12, that is 1। सर जो इसका आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका जो आंसर आया वो मेरा आ गया 1। अब इसका अगर आंसर 1 आ गया तो आप वो देखोगे a की वैल्यू भी 1 है, p की वैल्यू भी 1 है, तो सर इसका भी आंसर 1 आ रहा है, इसका भी आंसर 1 आ रहा है और इसका भी आंसर 1 है। अब यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बता पाना है कि यार इसका आंसर क्या है। तो अब हम क्या करेंगे सर, हमारे पास में अब हमारे पास एक ही मेथोडोलॉजी है, व्हाट इट इज कि ये मैंने जो नंबर अज्यूम करे, नंबर में मैंने यहाँ 1 और 1 ऐड करा, a की वैल्यू अलग नहीं ली, p की वैल्यू मैंने अलग नहीं ली। a की वैल्यू मान लो a की वैल्यू कुछ और होती, p की वैल्यू कुछ और होती, तो इसका आंसर कुछ और आता, इसका आंसर कुछ और आता, और ये तो ऑलरेडी 1 है ही है। आप समझ रहे हो? Yes, sir.
मैंने क्या Yes, sir, yes, मिस्टेक sir. करी, मैंने फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक करी वो ये, मैंने यहाँ ए बी 1 ले लिया और मैंने पी को भी 1 ले लिया, ए बी 1 ले लिया और मैंने पी भी क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो मेरे पास देखो ये ट्रायल आपको कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, इट मींस मैं अब ये बात समझ गया, और आप देखो ये भी बात पहले ही समझ जाओगे ऑप्शन को देख के कि अगर ए की वैल्यू भी 1 और पी की वैल्यू भी 1 होगी तो ये भी ऑप्शन 1 है, ये भी ऑप्शन 1 है, ये भी ऑप्शन 1 है, तो अगर ऑप्शन 1 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर मैं इसका रूट 2,3 ले रहा हूँ, या मान लो मैंने 2/3 एंड 3 ले लिया फॉर एन एग्जांपल, अब तो मेरा ए की वैल्यू सेम नहीं आएगी। No, sir. अब तो मेरे पास ए की वैल्यू सेम नहीं आएगी, इसका मतलब है मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट 9 दैट 11/3 ऑफ एक्स एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी सर 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ए की वैल्यू सर No, आ गई sir. मेरे पास में कितना, 3 3. सर, बी की वैल्यू आ गई 11 और सी का वैल्यू आ गया मेरे पास 6। ठीक है, अब 2/3 ऑफ सपोज +1 एंड 3 + 1 मतलब k का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बनेगी यहाँ। ये हो जाएगा सर 5/3 और ये हो जाएगा सर 4। सर इसका इक्वेशन निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस और सम ऑफ रूट, तो 12 and 5 तो 17/3, 12 and 5 17/3 ऑफ एक्स प्लस, सर इसका मैं अगर करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में 20/3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगा सर, अच्छा सर 2 प्लस करना पड़ेगा नहीं तो फिर 3 अपॉन में तो फिर सेम ही आएगा। नहीं, 2 करेंगे तब भी मेरे पास अपॉन में सेम वैल्यू आने वाली है, 3 हाँ वही आएगा। 3 आने वाली है, मतलब पी और क्यू की वैल्यू सेम आएगी। लेट मी ट्राई दिस। So this is 3x square minus of 17x plus 20 is equal to 0। ठीक है, अब सर वही b square minus of 4ac upon q square minus of 4pr। I will tell you what we can do this। तो b square मतलब 11 square minus of 4 into 3 into 6 and this is what my 17 square minus of 4 into 3 into 20। This is 121 minus 12 72 divided by 17 square 289 and this is 20 and 4 80 and 3 240। देखो 12 गुणा 20 240। अब सर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11 में से मेरा क्या जाएगा 2, तो 9 बचा, 11 में से 2 गया तो मेरे पास 9 बचा, और ये 11 10 49 डिवाइडेड बाय, यहाँ करूंगा तो यहाँ पे मेरा 49 आ रहा, दैट आंसर वुड बी 1। इसका मतलब क्या है, अभी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने पहली वैल्यू अज्यूम करी उस टाइम भी मेरा आंसर 1 आ रहा था, जब मैंने दूसरी वैल्यू अज्यूम करी तब भी मेरा आंसर 1 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 3 है और पी की भी वैल्यू मेरे पास में 3 है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में मैं कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ ना के, ठीक है, आई एम एडिंग सम नंबर, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड A and P, this is independent of A and P, so I will mark the answer A, sorry I will mark the answer as a B। Why? Because ये A और P की वैल्यू, जो A और P की वैल्यू है चाहे कुछ भी आ जाए, आंसर तो मेरा 1 ही आ रहा है ना। इसका जो आंसर है वो मेरा 1 आ रहा है कि नहीं, आप बताओ जरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सिद्धांत, आर यू देयर? Yes, hello, हेलो yes, are you there? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड पी, मतलब ए और पी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही आ रही है, तो मेरा आंसर जो रहेगा दैट विल बी 1 ओनली।
और मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मुझे अभी इसका सॉल्यूशन नहीं पता, मुझे इनमें से किसी के सॉल्यूशन नहीं पता कि इनका सॉल्यूशन एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। आई एम मेकिंग द स्टार। सो आपको समझ में आया मैंने यहाँ पर क्या करा, व्हाट आई डिड हियर? सर मेरे को ना आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक जस्ट अ सेकंड सर। ठीक है। हेलो। हाँ, यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके। सो सर मैं मिस कर गया था सर, जो आपने बताया। कोई बात नहीं, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप रब यस सर। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, क्या आई अज्यूम दैट अल्फा इज 2 and 3, और मैंने यहाँ पर लिया था 2/3, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कैलकुलेटिंग द स्क्वायर, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हो गया x² माइनस ऑफ 11/3 of x plus 2 is equal to 0. So this is 3x square minus of 11 of x plus 6 is equal to 0. Now what I am getting here, I am getting ki yaar this 2/3 plus 1 and 3y plus 1. हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको तब पता चल गया था कि सर डिवाइड में अगर 3 आ रहा है तो p की वैल्यू भी 3 आएगी। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई थी ना कि ये 5/3 यस हो सर। गया, ये 4 हो गया, तो p की वैल्यू भी 3 आ रही है और a की वैल्यू भी 3 आ रही है, तब भी डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको 1/2 कर लूँ और इसको अगर मैं 1/2 कर लूँ, क्योंकि भाई k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, k कैन बी एनीथिंग, k इज नॉट डिफाइन हियर, सो वी विल टेक k वैल्यू एनीथिंग। तो अगर मैं ये नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/3 plus 1/2 is my one root, that 3 plus 1/2, so this will be 6 and 7/2, and this will be 6 LCM, this is 4 plus 3, this is 7/6 and 7/2. इसका मतलब है मेरे पास बना that x² minus of 7/6 plus 7/2 of x plus 7/6 into 7/2 is equal to 0. What I will do here, that is x² minus of this value will be 6 my LCM, so the 7 plus 21 of x, थोड़ी calculation बढ़ेगी, 49/12 is equal to 0. So 12 will goes there, so this 12x² minus of 21 and the 28 into 2 of x plus 49 equal to 0. So this is a 12x² minus of 56x plus 49 equal to 0. Got it? अभी मेरे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 6। सर मेरे पास p की वैल्यू है 12 और q की वैल्यू है मेरे पास में 56 माइनस ऑफ 56 एंड r की वैल्यू है सर 49। What I need to calculate? I need to calculate the b square minus of 4ac upon q square minus of 4pr. So b square is 11 square minus of 4 into 3 into 6 divided by q, that is a 56 square minus of 4 into 12 into 49. अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, आई नीड टू चेक इट। दिस इज 121 माइनस ऑफ 12×72, so this 72 divided by 56 square. Now 56, please understand why how I am doing this 56 square. This is 50 more from 6, 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 और दिस इज 25 plus 6। मैं आपको जब क्वांट की क्लास होगी ना, उस क्वांट की क्लास में ये सारी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई जाएंगी। ये हो गया मेरे ओके पास सर। में 3136 माइनस ऑफ दिस इज 48 into 49, 48 into 49, 12×48, this 49. So this 48 और 49 का मल्टीप्लाई करना है तो 48 into 48 plus 1, 48 का स्क्वायर होता है 2304
and plus of 48. So this will be, I will tell you, let me just calculate here. So this is 2, carry 1, this is 5 and 2, 3. So this value will become, this is 49 divided by 3136 minus of 3136 minus of, this is 2352. If I'm swear, let me calculate. This is 4 and this is 13, that is 8 and 30, that is 7. 7 से 7 times 7 से 7 1 7, 112. 7 will be calculated like a 717 and 7 6 1 by 14, 1 by 46. The 3 upon 12. The answer is 1 by 4 square. Yes. Okay. Now I'm just going to tell you the final answer here. Listen to me. As this is the question of maze, so we have assumed that 2 by 3 and 3 is my options. Okay. So this was the x square minus ka sum of root plus product of root equal to 0. So this is x square minus of 9 and this is 11 of 3 of x plus 2 equal to 0. So answer would be 3x square minus of 11x plus 2 equal to 0. I got this equation. Now I want to add something. Because k is there. The moment I add this, I have understand कि यार ये 3 मेरा दोबारा से आ रहा है और यहाँ p की वैल्यू भी 3 आएगी, जैसा कि आपने मुझसे कहा था. अब अगर p की वैल्यू यहाँ 3 आएगी, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि भाई p ये होगा या वैल्यू ये होगा ये, बिकॉज a is also 3 and p is also 3, then we are not able to differentiate what is the answer here. So what I need to do, what we need to do, we have to add some number which is different. 2 by 3, suppose plus 1 by 2, because 1 by 2 is only the number that I need to take it, and 3 plus 1 by 2. So this is the root that I have taken here. This is 6. कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 से 2, this is 4 हो जाएगा. This is 4 here. And this is how much, 3 here, and this is also 7 by 2. So I have got the answer that 7 by 6 and 7 by 2. यहाँ तक क्लियर है आपको सिद्धांत? मैंने जो रूट्स अज्यूम कर लिया, बिकॉज यहाँ पर p की वैल्यू 3 आ रही थी और मेरा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. अब मैं इससे इक्वेशन निकालूंगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. मैंने यहाँ देखा तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, द 6 is LCM here, so this is 7 and this is 21 of x plus this is 49 by 12 is equal to 0. Now this 12 x square minus of 50, this is 28 56 of x plus 49 is equal to 0. Have you got this? यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे पास इक्वेशन बन गई. yes, अब काम इतना है कि यार a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू मेरे पास -11 है और c की वैल्यू 2 है. यहाँ p की वैल्यू मेरे पास 12 है, q की वैल्यू मेरे पास में -56 है और जो r की वैल्यू है वो मेरे पास में 49 है. The point is here we have to find out the b square minus of 4ac and b square minus of 4ac only. b square minus 4ac and b square minus 4ac. ठीक है. अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मेरे पास b स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c का मतलब था 2, 4ac. b square minus 4ac ना, so I am getting that b square minus of 4 into 3 into 2. q square minus 4pr होगा सर नीचे. q square minus of 4pr. ठीक है, ठीक है. तो 4a मतलब c. ठीक है. और नेक्स्ट है मेरे पास q स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है वो है मेरे पास में 56 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a मतलब 12 इंटू
ठीक है, मैंने ये गलत करा ना, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। देखो 3 का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 6 आएगा, इसका मतलब सी की वैल्यू 6 आएगी। सॉरी, द सी इज 6। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 49। अब बस इसको सॉल्व करना। दिस इज 121 माइनस ऑफ 12 72 डिवाइडेड बाय 56। सर 56 का स्क्वायर, ध्यान से सुनेंगे, 50 के बाद में कोई भी नंबर होगा, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 25 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 31 36। अब मान लो मैं आपसे 54 का स्क्वायर पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे, +4, 4 का मतलब 16, 25 प्लस 4, सो आंसर इज 29 एंड 16। ठीक है, क्लियर है? आप बताओ जरा, अगर मैं आपसे 53 का स्क्वायर पूछूंगा, सॉरी 56 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 57 का आप बता दो जरा, मुझे पता चल जाएगा आपका स्क्वायर आ गया। सर 32 49 3249। हाँ, +7 है ना, सो 73249 डन इजिली, है ना? तो ये मेरे पास आएगा 3136 माइनस ऑफ 48 इंटू 49। अब सर देखो, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन मैं जो मल्टीप्लाई करता हूँ वो ऐसे करता हूँ। 49 को मुझे याद है कि 48 का स्क्वायर क्या है, तो 48 स्क्वायर तो 2304 प्लस 48, सो दिस आंसर वुड बी 2352। तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आनी थी वो आ गई 49, और ये जो वैल्यू थी 3136 माइनस ऑफ 2352, so this value is 49 divided by 49 divided by, so this is 4, 6 में से 2 गया, 13 में से 5 गया तो 8, और ये 30 में से 23 गया तो 7, 7 से सर 7 टाइम्स, 7 से 112 टाइम्स, अगेन 7 से मेरा ये 16 टाइम, तो 1/16 आई गॉट द आंसर, 1/16। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज याद रखेंगे, ठीक है, because as I told you, this is a mains question and I have also not prepared for, you can say, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको कल पढ़ा फिर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, it is not happen for me, बस directly whatever I see in the question and I put it and I just solve at the time of moment. So अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा वो 3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/12 आ जाएगा, मतलब 1/4 आ रहा है। इसका जो वैल्यू आएगा वो 1/16 आ रहा है, और इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर हैज टू बी द ऑप्शन 3। This is now just remove the star. This is the correct answer that we will get here. That option C is the correct answer. यहाँ मैंने एक्सप्लेन करा, और थोड़ा सा ये मेंस का भी क्वेश्चन है, तो दिस मिनिमम रिक्वायर्ड टू 2 मिनट। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पे जब आप थोड़ा थोड़ा अपना जब आप बढ़ाओगे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, तो आप इजीली समझ लोगे कि कैसे करना है। ठीक है, आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, दैट हाउ वी कैन डू दैट, है ना? अब सर देखो ये क्वेश्चन है, अब इफ द रूट ऑफ इक्वेशंस आर इन द रेशियो ऑफ a रेशियो b, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो रूट अगर मेरे पास 6 है और बीटा अगर रूट मेरे पास 8 है, तो आप बताओ a रेशियो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अल्फा बीटा रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। 3, यस सर। इसका मतलब है a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई। यस सर। a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई ना। यस सर। अगर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है, तो अब हमें एक बात समझ में आ जाए कि यार L और M की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। L और M की वैल्यू मान लो L, इससे इक्वेशन बनेगी मेरे पास x² प्लस ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ, लेकिन ये प्लस प्लस में है तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, बिकॉज अंडर रूट में दिख रहा है आपको। तो आपको देखो यहाँ पर एक चीज और अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बिकॉज अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट मैनर इन अ मिनट। LX² plus MX plus N is equal to 0. Now AB, A रेशियो B में है, अब AB BA प्लस ML, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तभी तो कोई आंसर आएगा हमारे पास। आप बताओ, तभी तो कोई आंसर आएगा। दूसरा ये कि यार जो मेरे पास वैल्यूज हो वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब ये तो चलो ठीक है, इसकी वैल्यू डिफरेंट, बिकॉज दिस इज नॉट डिपेंडेंट, इसको तो हम अज्यूम नहीं कर रहे ना।
हम ए और बी को तो अज्यूम कर रहे हैं ना, ए और बी को तो अज्यूम कर रहे हैं। यस सर। इसका मतलब Yes, है sir. वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। यस सर। अब जब परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए तो मैं इसको ले लेता हूं भाई, ए रेशियो बी मैंने ले लिया सपोज 4:9, सपोज। अब जब मैंने ये 4:9 ले लिया तो मैं रूट क्या लूंगा, रूट में ये ले सकता हूँ कि ये अगर 8 हो गया तो बीटा मेरा 18 हो गया, क्योंकि भाई रेशियो में जो कॉमन वाली बात है वो हट जाती है। आप बताओ। यस सर। अब यहाँ Yes, तक sir. बात खत्म हो गई, ये अजम्पशन अगर हमने कर लिया ना तो टेंशन खत्म है। अब सर यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी काम करेंगे, माइनस माइनस कर लेते हैं। द थिंग इज बिकॉज कि ये रूट माइनस माइनस है, रेशियो तो यही रहेगा। रूट मैंने -2 मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा मेरा 8 ऐड करूंगा तो 18 और 8 कितना 26 ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, प्लस अब मैंने करा तो ये मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट करूंगा मैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर। लेकिन इसमें एक दिक्कत और आ गई, इसमें एक दिक्कत और आ गई, ये भी वैल्यू एम है और ये भी वैल्यू एम है। यस सर। करेक्ट, ये हमने पहले मिस कर दिया था। देखो हमने यहाँ एन लिखा है, अब ये दोनों अगर सेम है तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। इसलिए इजी हो गया क्योंकि एक ही इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। यस सर। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी सर -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। दिस इज ओनली पॉसिबल ना यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर सम ऑफ रूट के बराबर है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है, दिस इज ओनली पॉसिबल आइडिया कि अल्फा की वैल्यू 2 होगी तभी ऐसा होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। आप बताओ कौन से नंबर के लिए हो जाएगा। सम ऑफ रूट, दो नंबर का समेशन अगर उसके प्रोडक्ट के बराबर है तो सर वो दोनों नंबर 2 और 2 ही हो सकते हैं, और कोई तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन और इजी हो गया। पहले तो Yes, sir. हमने एम एन लिख लिया था, मेरा नजर नहीं गया यहाँ पर, तभी मैंने कहा था रीड क्वेश्चन केयरफुली, है ना, यहाँ मैंने ही मिस्टेक कर दी। तो सर क्वेश्चन ऑप्शन, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ए बी की वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट, that possibility only that alpha is -2 and beta is -2. It means A ratio B is nothing 1:1. A Yes, or sir. B ratio nothing, then 1:1. So under root of 1/1 plus under root of 1/1 plus under root of 4 1. So this is 1 plus 1 plus 2. So the answer has to be the, sorry, this is 2 na, yes, so answer has to Yes, be the sir. 4. So option this, none of these. Have Yes, you got sir. the answer or not? एक बार दोबारा Yes, sir. से Yes, बता, sir. दोबारा से बता दूं। नहीं सर समझ गया, ठीक है। कोई नहीं, Not. एक सेकेंड देखो, the moment I got the sum of root and the product of root same, it means मेरे दिमाग में आप अगर लिख लो या कुछ भी, मेरे दिमाग में एक ही इक्वेशन आ सकती है दिस, और कोई इक्वेशन नहीं हो सकती, और कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कि अगर दो नंबर का समेशन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, that alpha has to be the 2 and beta has to be the 2 only. यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये है मेरे पास जो x की वैल्यू है, मतलब मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू है जो रूट है, अल्फा आ गया मेरे पास -2 और बीटा आ गया मेरे पास -2। वो जो रेशियो में है, तो रेशियो सर -2 रेशियो -2 का मतलब हो जाएगा 1:1, -2 रेशियो -1 का मतलब 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं निकाल रहा हूँ √1/1 प्लस √1/1 प्लस √4/1, बिकॉज m की वैल्यू 4 आ रही है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो 1 + 1 + 2, सो आंसर हैज टू बी द ऑप्शन 4। आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगेन एंड अगेन रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व फॉर यू। एक क्वेश्चन और है वो आप सॉल्व करेंगे। इफ द इक्वेशन this and this has a common positive root, a common positive root,
देन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है अगर इसका पॉजिटिव रूट है तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। अब सर इसको फैक्टर करेंगे, बनेगा 4 इंटू 3, और इसको फैक्टर करेंगे 5 इंटू 3, और इसको अगर हम फैक्टर कर लिए तो बनेगा 12 इंटू 3। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि यार ये 3 3 3 कॉमन आ रहा है। यस सर। अगर मैंने इसको 4 हाँ। इंटू 3 करा, मुझे सिर्फ मैच करना है। क्या मैच करना है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0 है। मैंने जब इसको करा 4 इंटू 3, और इसको करा मैंने 5 इंटू 3, और इसको मैंने करा 12 इंटू 3, आई नीड टू ओनली चेक कि यार अगर ये मेरा -7 बन रहा है, ये अगर मेरा -8 बन रहा है, इज इट -15 और नॉट? यस इट इज -15। 12 इंटू 3 एंड ए -8 एंड -7 15। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू -7 हो गई और बी की वैल्यू -8 हो गई। तो -7 -8 इज माय करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार दोबारा अगर मैं रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस मैथोडोलॉजी इट माइट बी द डिफरेंट, है ना। आपको हो सकता है आपने पहले नहीं सुना हो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, and this x square plus a plus b of x plus 36 इक्वल टू 0। हमें क्लू कहां से मिला? क्यों मिला सर? आ कॉमन पॉजिटिव रूट। इसका मतलब है अगर ये प्लस है तो इसका पॉजिटिव रूट तभी होगा, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव होना चाहिए। नहीं तो ऑप्शन से भी समझ जाओ। सर मैंने यहाँ करा 4 इंटू 3, मैंने यहाँ करा 5 इंटू 3, और यहाँ मैंने करा 12 इंटू 3। कोई दिक्कत? तो सर 3 कॉमन रूट बन रहा है, और अगर ये 4 इंटू 3 है तो ये -7 है, ये 5 इंटू 3 है तो ये -8 है, और अगर ये -7 -8 है तो ये मेरा -15 है, और 15 मेरा -12 -3 बनाएगा, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट? यस सर। नाउ this is the same type of question as I have discussed here. this ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन है ये। देखो आपको याद है a प्लस एच करा हमने, और दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन b अपॉन a, p अपॉन q, b अपॉन a, p अपॉन q। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर होमवर्क। व्हाट यू विल डू, लेट मी टेल यू द स्टेप। आप पहले h की वैल्यू इंटीजर मानना। पहले आप 2 और 3 अज्यूम करोगे, h को अज्यूम करोगे 1, तो अगला हो जाएगा 3 एंड 4। ठीक है, वो अज्यूम करना पहले, क्योंकि ये इजी नंबर होते हैं। वहां से अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो ऑप्शन में तो करना, अदरवाइज नहीं करना। या आप एक काम करो, अभी कर लो क्वेश्चन, अभी करो। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, सॉल्व इट। Can I do this? 2 3 x square minus sir. of 5x plus 6 is equal to 0. Then a is 1 and b is -5 and c is 6. This is now sir. 3 and 4 because plus 1 I have taken. So this is x square minus 7x plus 12 equal to 0. Now I got the p value is my 1 and q value is my -7 and r value is my 12. We have to find out the value of h, और हमारी h की वैल्यू हमने क्या मानी है? 1। yes sir. इसका मतलब है अगर इसका आंसर 1 आ गया तो ये आंसर है, अगर इसका आंसर 1 आ गया तो ये आंसर है, और अगर इसका आंसर 1 आ गया तो ये आंसर है। वैल्यू रख दो। yes sir. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मेरी -5 है, और p की वैल्यू मेरे पास में p एंड q, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू मेरे पास -7 है। तो b अपॉन a, तो -5 अपॉन 1 माइनस ऑफ q की वैल्यू सर -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 1। सो दिस इज सर 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब है
इसका वैल्यू 1 आ जाएगा बिकॉज 1/2 लगा इसके आगे, हाँ और जी इसका सर, वैल्यू मेरा -1 आ जाएगा। 1 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ वो वाली यस। दिक्कत क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सिर्फ ए और पी पे डिपेंडेंट था, ये ए बी पी क्यू पे भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत हमें पड़ी नहीं। ठीक है, यस सर। यस अब सर। समझेंगे। देखो अब आज आपको करना क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ निमसेट। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू टुडे, सबसे पहले यू नीड टू रिवाइज माय पीपीटी। ठीक है, ओके सर। यू विल बी गेटिंग एंड आपको ना एक कॉल आएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो आपको एक कॉल आएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, देन योर रजिस्ट्रेशन विल बी डन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओके लाइक सर। योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड योर फोटो। ठीक है, और आप या यस फिर सर। एक काम करते हैं, ये सारी जो प्रोसेस है, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वी नो ऑलरेडी, आपका फोटो, एवरीथिंग सेंड इट टू 9639602006 वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप सारा भेज दो। ठीक है, इन वन यस यस आवर सर, ऑफ मैसेज। टाइम, in 1 hour of time you will get everything related to app and along with the assignment uploaded in that also. ठीक है, ओके सर। what you will do today, ये जो स्लाइड यस। है, स्लाइड आप मैं आपको, ये आपको मिल जाएगी, ये मेरी तरफ से मिलेगी, दैट आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, या आपको सेम ग्रुप पे मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, एक ग्रुप मैंने बना रखा है। ठीक है, सो यस सर। व्हाट यू विल नीड टू डू टुडे, आप इस क्वेश्चन, ये पूरी सीट बहुत अच्छे से करेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चंस करने की, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे सर मैं ट्रैकल ये चीज नहीं कर पा रहा है ना। The second class you might get on you can say Monday, क्योंकि बाकी रीजनिंग वगैरह की भी क्लास होगी, then we will यस discuss सर। this problem along with the practice question and along whatever the remaining part we have left. ठीक है, जो हमारा रह ओके गया सर। है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। ओके so सर। thank you and I hope you enjoy the session more than the demo session one. ठीक है, यस आपका जो डेमो सर। सेशन था उससे हो सकता है आपने ज्यादा इम्प्रूव इसको एंजॉय करा हो। ठीक है, एंड प्लीज प्रोग्रेस एवरी डे, यू नीड टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 1 or 2 hour ओनली, minimum 1 and 2. ठीक है, that's यस सर। sufficient for the preparation of this long journey. Okay, thank you यस सर। Siddharth, and थैंक यू we सर। will meet day after tomorrow. ठीक है, ओके सर, थैंक यू। okay.